Gujarat News has been brought to you by Aaj Tak, सबसे तेज। નમસ્કાર અમેરિકા, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તકની વિશેષ રજૂઆત। આપની સાથે હું છું નીલમ ખારેચા। દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર પર નજર કરીશું, પરંતુ સૌથી પહેલા નજર કરીએ મુખ્ય સમાચાર પર। વાયનાડના 4 ગામમાં ભૂસ્ખલનથી 90થી વધુ લોકોના મોત, 400 લોકો ગુમ, 4 ગામ ધોવાઈ જતા આર્મી બોલાવાઈ। પીએમ મોદીએ દુર્ઘટના પર વ્યક્ત કર્યું દુઃખ। યોગી સરકારનો મોટો નિર્ણય, યુપી વિધાનસભામાં લવ જેહાદ બિલ થયું પાસ, આરોપીને આજીવન કેદ આપવાની બિલમાં જોગવાઈ। સુરતના મેટ્રો બ્રિજના 2 ફાડિયા, મેટ્રો ફેઝ 2ના ઉદ્ઘાટન પહેલા જ બ્રિજ બન્યો ઝૂલતો પુલ, સારોલીથી કડોદરા તરફનો રસ્તો કરાયો બંધ। સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતમાં મેઘમહેર યથાવત, હજુ પણ આગામી 7 દિવસ સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી। ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં અતિભારે વરસાદ સાથે ઓરેન્જ એલર્ટ, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના। મનુ ભાકરે ભારતને અપાવ્યો બીજો બ્રોન્ઝ મેડલ, એક જ ઓલિમ્પિકમાં 2 મેડલ જીતનારી પ્રથમ ભારતીય બની મનુ ભાકર। સરબજોત સિંહ સાથે મિક્સ ઇવેન્ટમાં જીત્યો બ્રોન્ઝ। ગુજરાત ભાજપના 2 દિગ્ગજ નેતાઓની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે। 400 કરોડના ફિશરીઝ કૌભાંડમાં 2 ભાજપના નેતાઓ એટલે કે દિલીપ સંઘાણી અને પુરુષોત્તમ સોલંકી છે, તેની મુશ્કેલીમાં વધારો થયો છે। ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ બંને નેતાઓને ઝટકો આપ્યો છે। શું છે આખો મામલો અને શા માટે તેની મુશ્કેલીના વધારો થયો છે તે જાણો આ રિપોર્ટમાં। ₹400 કરોડના ફિશરીઝ કૌભાંડમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકારના 2 પૂર્વ મંત્રીઓને ઝટકો આપ્યો છે। જી હા, 400 કરોડના કથિત ફિશરીઝ કૌભાંડમાં ભૂતપૂર્વ મંત્રી પુરુષોત્તમ સોલંકી અને દિલીપ સંઘાણીની ડિસ્ચાર્જ અરજીને હાઈકોર્ટે ફગાવી છે। કરોડોના ફિશરીઝ કૌભાંડ મામલામાં મત્સ્યોદ્યોગના મંત્રી પુરુષોત્તમ સોલંકી અને પૂર્વ કૃષિ મંત્રીની મુશ્કેલીઓ વધતી દેખાય છે। ફિશરીઝ કૌભાંડને લઈ બંને નેતાઓએ તેમની સામે થયેલી ફરિયાદ રદ કરવા માટે કોર્ટમાં અરજી કરી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી છે। આ ઉપરાંત કોર્ટે સંઘાણી અને સોલંકીને 2 સપ્તાહમાં કોર્ટમાં હાજર થવાનો આદેશ આપ્યો છે। હાઈકોર્ટે ગુજરાતમાં મોદી શાસનમાં થયેલા 400 કરોડ રૂપિયાના ફિશરીઝ કૌભાંડ બાબતે બંને તત્કાલીન મંત્રીઓ સામે ગાંધીનગરની કોર્ટે ઇસ્યુ કરેલી ક્રિમિનલ પ્રોસેસને રદ કરવાનો ઇનકાર કર્યો છે। આ ફિશરીઝ કૌભાંડની વાત કરવામાં આવે કે આ ફિશરીઝ કૌભાંડ શું હતું, તો આપને જણાવી દઈએ કે માછીમારોને અપાતો 5 વર્ષનો કોન્ટ્રાક્ટ 2008માં પૂરો થયો હતો। 2009માં હરાજી કરી આ કોન્ટ્રાક્ટ પુનઃ આપવાના હતા, પરંતુ પુરુષોત્તમ સોલંકીએ અપસેટ પ્રાઇસથી પહેલા 12 લોકોને અને પછી 38 લોકોને કોન્ટ્રાક્ટ આપી દીધા। હરાજી વિના કોન્ટ્રાક્ટ આપવા કેબિનેટ મંજૂરી લેવાની રહે છે। આ મંજૂરી પુરુષોત્તમ સોલંકીએ મેળવી નહોતી। ફિશરીઝ કૌભાંડની તપાસમાં એસીબીએ સોલંકીને મુખ્ય સૂત્રધાર દર્શાવ્યા છે। ફિશરીઝ કૌભાંડ થયું ત્યારે દિલીપ સંઘાણી કેબિનેટ મંત્રી હતા। રાજ્ય કક્ષાના મંત્રીએ નિયમનો ભંગ કરી કોન્ટ્રાક્ટ ઇસ્યુ કર્યો ત્યારે સુપરવિઝનની જવાબદારી તેમની હતી, પરંતુ તેમણે આંખ આડા કાન કર્યા। આ ઉપરાંત જે પ્રકારે હરાજી વગર કોન્ટ્રાક્ટ અપાયો તેમાં કેબિનેટની મંજૂરી જરૂરી હતી, તેમ છતાં તે મુદ્દે સંઘાણીએ કોઈ ધ્યાન આપ્યું નહીં અને આમ કૌભાંડમાં મદદ કરી। ત્યારે હવે આ 400 કરોડના ફિશરીઝ કૌભાંડમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ બંને પૂર્વ મંત્રીઓને ઝટકો આપ્યો છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।
આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ છે તે અરવિંદ કેજરીવાલને જેલ મુક્ત કરવા માટે રસ્તા પર ઉતર્યા. અમદાવાદના રસ્તા પર આમ આદમી પાર્ટીના નેતાઓ હલ્લાબોલ કરતા જોવા મળ્યા હતા અને આ તમામ નેતાઓએ જેલ મુક્ત કરવા માટે કેજરીવાલને આખું આંદોલન છેડ્યું હતું. इंडी गठबंधन के तहत अहमदाबाद में एक पदयात्रा की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता एक साथ आए हुए हैं, उन्हीं से बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पदयात्रा कर रही है, क्या मैसेज देने का प्रयास है? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से भाजपा ने जेल में डाला है फर्जी केस में, और ईडी सीबीआई से लेकर उनको जेल में रहे ऐसा प्रयास किया जा रहा है, जेल में उनके अच्छी स्वास्थ्य नहीं दे रहे, इसलिए आज इंडिया गठबंधन के साथी अहमदाबाद में बहुत भारी संख्या में आपने देखा होगा, और यहाँ हमारे धारासभ्य श्री पहुँचे हैं, कांग्रेस के शहर प्रमुख से लेकर धारासभ्य श्री भी यहाँ पहुँचे, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता पहुँचे, और आज हम रैली निकालकर भाजपा को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जितना भी तानाशाही कर ले, एक दिन सत्य की जीत होगी। अरविंद केजरीवाल जी की स्वास्थ्य के साथ भी चढ़ा किया जा रहा है, और ये रैली देकर हम ये मैसेज देना चाहते हैं इंडिया गठबंधन वाले कि आप जितने भी तानाशाही कर लो, आप रावण बन के तानाशाही कर लो, हम राम बनकर आपका सर्वनाश करेंगे। सीबीआई की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी के तौर पे बताया गया है। बिल्कुल, देखो ये एक फर्जी है। आज 2 साल पहले सीबीआई ने बुलाया था, सीबीआई ने तो किया ही नहीं था। अब ईडी की जमानत मिली, इसलिए ये सीबीआई वाले फिर से एक्टिव हुए ताकि वो जेल में ही रहे। अहमदाबाद के शहर प्रमुख, कांग्रेस के शहर प्रमुख भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका भी क्या मैसेज देने का प्रयास, क्योंकि आज दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को की स्वास्थ्य को लेकर इसी प्रकार से वहां पे भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस पक्ष की तरफ से आप और कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश में लोकतंत्र को तोड़ने का जो प्रयास कर रही है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, उनको गलत तरीके से गलत केस बनाकर कहीं ईडीआई, कहीं सीबीआई, कहीं इनकम टैक्स, उन पर फंसाकर जबरन तरीके से उनको जेल में डालना और उनको परेशान करना, उनको राजनीतिक तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी में अगर वो उनके वॉशिंग मशीन में साफ होकर चले जाएं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो वो एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। सारे भ्रष्टाचार के आरोप जो है वो उनके ऊपर चले जाते हैं। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनकी चर्चा बहुत खुल के हुई है। केजरीवाल जी एक इस राज्य के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, जननायक हैं, उन्होंने जनता का काम किया है, गलत तरीके से उनको अरेस्ट किया गया है। देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को एक बिल्कुल झूठे फर्जी मुकदमे में जेल में डाला हुआ है बीजेपी ने। कोर्ट से बेल मिलने के बाद भी कानूनी दाव पेंच में उलझाकर जेल से बाहर नहीं आने देने का षड्यंत्र बीजेपी लगातार करती जा रही है। इस दौरान अरविंद केजरीवाल जी की मेडिकल कंडीशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। वो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट है, वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, कभी हाई शुगर हो जाता है, कभी लो शुगर हो जाता है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी जेल प्रशासन और बीजेपी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए आज अरविंद केजरीवाल जी की हेल्थ कंडीशन को लेकर के जनता तक हमारी बात पहुंचाने के लिए, बीजेपी का विरोध करने के लिए और अरविंद केजरीवाल जी की तबीयत को, उनके स्वास्थ्य को भगवान अच्छा रखे, ये प्रार्थना करने के लिए आज आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे सभी इंडिया गठबंधन की पार्टी को साथ में रखते हुए दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन रखा है, और सभी स्टेट यूनिट में भी इंडिया गठबंधन के साथ एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया गया है। और उस कार्यक्रम के तहत आज आम आदमी पार्टी गुजरात यूनिट ने भी इंडिया गठबंधन के साथ एक पदयात्रा का आयोजन किया है, जिसमें हम
अरविंद केजरीवाल जी की बिगड़ती हुई मेडिकल कंडीशन के साथ साथ ईश्वर को प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनको स्वस्थ रखे, जल्दी से वो बाहर आए और देश सेवा के काम में लगे। देखो, सीबीआई के 2014 के बाद के जितने भी चार्जशीट थे उसमें जो लोग बीजेपी में जुड़ गए उनके नाम निकल गए, और जिन्होंने बीजेपी के सामने झुकने से मना कर दिया, बीजेपी के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया, उनके नाम चार्जशीट में आ रहे। तो ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल फर्जी केस है, चाहे चार्जशीट में नाम आ जाए चाहे कहीं पर भी नाम आ जाए। इस केस की बुनियाद ही राजनीति की जो दुश्मनावट है वो इस केस की बुनियाद है। बीजेपी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन में नहीं जीत सकती, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में नहीं हरा सकती, इसलिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को जेल में रखना चाहती है। लेकिन हम सब लोग, आम आदमी पार्टी के लोग, जनता बीजेपी के इस मंसूबों को पार नहीं उतरने देंगे। हम लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। केजरीवाल के अरेस्ट पर आज भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए अहमदाबाद में इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पदयात्रा की है। साथ ही में एक उम्मीद जताई है कि आने वाले दिन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो भी चार्ज लगाए गए हैं उसमें वो बेगुनाह साबित होंगे। कैमरा पर्सन साहिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक। ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાય સમયથી એક બાદ એક બ્રિજ પડવાની દુર્ઘટનાઓ સામે આવતી રહી છે, અને તેના કારણે જે ભ્રષ્ટાચાર છે તેનો ઉજાગર થતો જોવા મળ્યો છે, અને આવી જ ઘટના ફરી એકવાર સામે આવી છે સુરતથી। સુરતમાં મેટ્રોનો જે બ્રિજ છે તેનું ઉદ્ઘાટન થાય તે ઉદ્ઘાટન પહેલાં જ તેમાં તિરાડ પડી છે, અને આ તિરાડ પડતાની સાથે જ તેમાં ભ્રષ્ટાચારની બૂ આવી રહી છે। हमारे देश में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट बनाती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही धड़ाम हो जाते हैं। एक ताज़ा तस्वीर सूरत से सामने आई है, जहां पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का काम चल रहा था और अभी निर्माणाधीन ही था, और उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर दरारें पड़ चुकी हैं, या कहेंगे कि बीच से स्पान जो है टूट चुका है। ऊपर रुका हुआ जरूर है, ज़मीन पर नहीं गिरा है, लेकिन ये टूट चुका है बीच से। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो इसमें लोहे की जो सरिया वगैरह डाले हुए हैं वो साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं। दरारें इतनी बड़ी हो चुकी है कि यहाँ पर काम भी बंद कर दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कोई भी सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ अधिकारी मौजूद नहीं है, और ये तस्वीरों को हम जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो पिलर नंबर 748 है उसके बीच ये जो है ये दरारें पड़ी हुई हैं, और इस मामले पर जवाब देने के लिए सूरत महानगर पालिका या इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट करोड़ों रुपए का खर्च करके सूरत में बन रही है, और अभी तो बन भी नहीं पाई है, शुरू होने तो दूर की बात थी, उससे पहले इसमें दरारें पड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता जो है पंकज ताड़े यहाँ पर पहुँचे, उनसे बात करेंगे। पंकज जी, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विकास आज लोगों के सामने आ गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार कर रही है, और इसी भ्रष्टाचार के कारण पूरे भारत देश में कई सारे अनगिनत पुल ऐसे गिर चुके हैं, कई सारे ऐसे कांड हो चुके हैं। गुजरात के अंदर में बहुत सारे ऐसे पहले भी कांड हो चुके हैं। अभी ताजे तराने में आज सूरत की आप बात देख सकते हो कि मेट्रो तो अभी चालू भी नहीं हुई है, उसके पहले इनकी ये स्थिति हो गई है। आज यहाँ पर कितने सारे वर्कर काम कर रहे हैं, लोगों की नीचे से अवर जवर चालू है। आज कोई दुर्घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी सोचती क्यों नहीं है? पूरी प्लानिंग के साथ में काम क्यों नहीं करती है? सिर्फ उनके मर्तरिया लोगों को ही ये टेंडर देने के बाद में इन लोगों को टेंडर पास करा के इन लोगों को पैसा लेना और भ्रष्टाचार करना भारतीय जनता पार्टी का शासन अभी से अभी तक चलता आ रहा है। और राजकोट के अंदर में इसके पहले भी अग्निकांड हुआ, उसके पहले मोरबी के अंदर कांड हुआ, उसके पहले सूरत के अंदर तक्षशिला कांड हुआ, इनके कई सारे गुजरात के अंदर कांड हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर शासन में बैठ के काम करना नहीं आता है तो उनको सत्ता से राजीनामा दे देना चाहिए, सत्ता छोड़ देनी चाहिए, और जनता के भरोसे जनता चाहेगी उसको सत्ता पे बिठाएगी और भ्रष्टाचार बंद करें। जय हिंद, जय भारत।
तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि ये इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और यहाँ पर कांग्रेस के जो सूरत महानगर पालिका के पूर्व पार्षद हैं असलम भाई साइकिल वाला, वो भी पहुंचे, उनसे बात करते हैं। असलम भाई, इसको क्या कहेंगे कि अभी तो काम चल ही रहा था? ये जो आज दिख रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, उसके कामगिरी की गंभीर बेदरकारी और गैर वहीवट का उत्तम उदाहरण है। मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का ये काम पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि बेदरकारी सामने आई है। इससे पहले भी उतना दरवाजा में इनकी क्रेन गिर गई थी, दिन दहाड़े गिरी थी और एक रिक्शा दब गई थी। और अब तक लगभग 4 से 5 व्यक्तियों की इनके कारण से अकस्मात से मृत्यु हुई है। वो रजिस्टर में नोंद है कि अकस्मात है, लेकिन मेरा सीधा कहना है कि वो अकस्मात नहीं, मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की बेदरकारी से की गई हत्या है। और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का काम जो चल रहा है उससे लोगों को त्राहिमाम है, त्रास है, सगवड़ता नहीं अगवड़ता मिल रही है। और अभी तो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का 30-35% काम हुआ है, उसमें ऐसी गंभीर बेदरकारी है, इतना भ्रष्टाचार हमारे सामने दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में जब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन चलेंगी तो कितनी सुरक्षा देंगे वो भी शंका है। और जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, वो कॉन्ट्रैक्टर भारतीय जनता पार्टी को इतना धनदान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, उनको अपना जमाई समझते हैं। और ये जमाई राज है। ये जमाई राज के अंदर हर हमेशा तंत्र को वो अपने हिस्से में लेकर चलते हैं। वो न कॉरपोरेशन को गिनते हैं, न कलेक्टर को गिनते हैं। उनके मन में आएगा वही करेंगे। उनके मनस्वी रीत से, उनकी मनस्वी नीतियों से ये कामगिरी कर रहे हैं। और आप खुद देख रहे हैं कि आज दिन दहाड़े ये जो मुख्य मार्ग है, सूरत का टेक्सटाइल हब हिस्सा रहे, पर्वत पाटिया से लेकर सारोली कटोदरा रोड, टेक्सटाइल मार्केट बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, शहर की प्रजा को त्रास हो रहा है, लोग कितने हैरान हो रहे हैं। उसकी पूरी जवाबदारी किसी की है? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन की है। अब जिस तरह से ये चल रहा था, स्पान में जो है टूट चुका, ये कहेंगे गिरा तो नहीं लेकिन टूटा हुआ तो स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। तो ये किस तरह का ये मटेरियल यूज़ कर रहे हैं? वही बोल रहा हूँ कि इसमें ये पूरे कामगिरी के मटेरियल को चेक करना चाहिए। इसी एक पिलर या एक कॉलम में ये मटेरियल नहीं होगा। जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ जहाँ पिलर रखे हो, हर पिलर की तपास होनी चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए। और जब ये कामगिरी जो अधिकारियों की निगरानी में चल रही होगी, उनकी जवाबदारी क्या है? सब जो सरकार के अच्छे अधिकारी थे, अच्छे बोले तो मीन जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ डील उलू किया, वो सब रिटायर, वो सब मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में नौकरी कर रहे हैं। जिन्होंने कॉरपोरेशन में बैठ के या सूडा में बैठ के भ्रष्टाचार किया, पैसे बनाए, रुपया बनाए, करोड़पति बने, आज वही मेट्रो रेल का काम संभाल रहे हैं। तो वो जो उन्होंने वहाँ बैठ के कुछ नहीं किया, तो यहाँ बैठ के क्या करेंगे? ये मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जिम्मेदारी बनता है, उसको पूरी ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए और पूरे काम करके, क्योंकि ये शहर के लोगों की जान माल की सुरक्षा की जवाबदारी है। ये लोगों के पैसे से बन रहा है, कोई अंबानी या अदानी के घर के पैसे से तो नहीं बन रहा है। तुम्हारे मेरे टैक्स के पैसों से ये जो भी बन रहा है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी, इसको कैसे बनाना चाहिए, अच्छे बनाना चाहिए। जवाबदारी तंत्र की, भारतीय जनता पार्टी के शासन की, लेकिन आज जो निष्फल है इस चीज़ में। तो बिल्कुल असलम भाई साइकिल वाला हमसे बात कर रहे थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ये जो बना हुआ है, जो अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है इसकी, और निर्माणाधीन कार्यक्रम ये जो काम चल रहा था उसके अंदर ये भ्रष्टाचार हुआ है। और जो असलम भाई जो पूर्व पार्षद, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये भी कहा है कि जो अधिकारी पहले महानगर पालिका में काम करते थे, वो अब इसी मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो कॉरपोरेशन है उसमें काम कर रहे हैं। और वो जब वहाँ काम नहीं कर पाए तो यहाँ पे किस तरह का काम करेंगे, ये उनसे क्या उम्मीद रखें। ये पूरे सब जगह पे भ्रष्टाचार हुआ, ये साफ तौर पे देखा जा सकता है और स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के नेता हो, ये सभी इस मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की गंध आने की बात कर रहे हैं। संजय सिंह राठौड़, सूरत। સમાચારમાં હાલ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો। गुजरात न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय आज तक सबसे तेज। गुजरात न्यूज हैज बीन ब्रॉट टू यू बाय आज तक सबसे तेज। ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે। ક્યાંક મેઘમહેર છે તો ક્યાંક મેઘરાજા કહેર બનીને વરસી રહ્યા છે। ત્યારે આગામી સમયમાં
કેવો વરસાદ રહેશે? આ મુદ્દે અંબાલાલ પટેલે તો એવી આગાહી કરી છે કે ઓગસ્ટ મહિનામાં ભારે વરસાદ રહેવાનો છે, પરંતુ સમગ્ર મુદ્દાને લઈને હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામી છે તે શું કહી રહ્યા છે તે સાંભળો. હવે ખાસ કરીને વાત કરવાની છે જે 17 થી 29 જુલાઈનું આપણું આગાહી હતી, એ પણ આપણે એપ્રિલ મહિનાથી આગાહી કરેલી હતી. એ આગાહી મુજબ જોવા જઈએ તો 17 થી 29 જુલાઈ સુધી આપણે રાજ્યના તમામ વિસ્તારોની અંદર વરસાદ નોંધાયો છે. ચોક્કસ વાત છે કે મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગો છે, એ સાથે કચ્છના અમુક ભાગો છે એ વરસાદથી વંચિત હતા. એમાં પણ છેલ્લા 2 દિવસની અંદર સારો એવો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જેની અંદર કચ્છનું બન્ની વિસ્તાર હોય, રાપર તાલુકાના અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, ઉત્તર ગુજરાતના પણ ઘણા દિવસથી વાવ થરાદ જેવા વિસ્તારો હોય, બનાસકાંઠાના બીજા વિસ્તારો છે એમાં વરસાદ નહોતો, સાબરકાંઠા, મહેસાણા અને પાટણ જેવા વિસ્તારમાં વરસાદ નહોતો, એમાં પણ સારા વરસાદો નોંધાયા છે. હવે એ વિસ્તારના ખેડૂતો પણ વાવણી કરી શકશે. હા, એક ચોક્કસથી વાત છે કે આપણું રાજ્ય મોટું છે, હજુ પણ કદાચ બની શકે કે લગભગ 3 થી 4% વિસ્તાર વરસાદમાં વંચિત હશે, જેની અંદર ખાસ કરીને મોરબી, સુરેન્દ્રનગર જેવા વિસ્તારો છે એમાં હજુ વરસાદની તકલીફ છે. પણ આપણે એક ટેકનોલોજીના મારફતે આગાહી કરી શકીએ. આપણે વરસાદ તો વરસાવી નથી શકતા, આપણા હાથમાં હોય તો આપણે વરસાવી દઈએ, પણ આપણે ટેકનોલોજીના મારફતે જે આગાહી કરતા હોય એ આગાહી મુજબ આપણે અનુમાન લગાવતા હોય. એમાં આપણે આ રાઉન્ડ હતો આપણે આગાહીનો, એ પણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયું છે. આપણી આગાહી મુજબ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ થયો છે. ખાસ કરીને હવે આપણી ઉપર જે એક સિસ્ટમ પસાર થઈ છે, જે એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે, એ આપણી ઉપરથી પસાર થઈ ચૂક્યું છે. આજે 30 જુલાઈ છે, 30 જુલાઈ સુધીમાં હવે એ ધીમે ધીમે આપણી ઉપરથી પસાર થઈ ચૂક્યું છે. હવે માત્ર ગુજરાત ઉપર એના આઉટર ક્લાઉડ બચ્યા છે. હવે માત્ર આઉટર ક્લાઉડ બચ્યા છે. અત્યારે સર્ક્યુલેશન છે એ ઉત્તર પશ્ચિમમાં ખસી ગયું છે, જેને કારણે હવે આવતીકાલે 31 જુલાઈથી રાજ્યભરની અંદર વરાપ જેવો માહોલ જોવા મળશે. હા, એક ચોક્કસ વાત છે કે આવડી મોટી સિસ્ટમ આપણી ઉપરથી પસાર થઈ છે. એટલા દિવસ રાજ્યની અંદર અનેક વિસ્તારોની અંદર વરસાદી માહોલ હતો, જેને કારણે અમુક વિસ્તારો ઉપર કદાચ ભેજ રહી ગયો હોય તો છૂટા છવાયા હળવા સામાન્ય ઝાપટા પડી શકે, એ અપવાદ રહેશે. બાકી હમણાં કોઈ મોટા વરસાદની શક્યતાઓ નથી. આવતીકાલે એટલે કે 31 જુલાઈથી આપણે વરાપનો માહોલ છે થોડા દિવસ માટે, અને એ વરાપના માહોલની અંદર આપણે તમામ પ્રકારના જે ખેતી કામો છે એ કરી લેવા જોઈએ, જેની અંદર સાથી આપવું હોય, નિંદામણનાશક દવા છાંટવી અથવા તો નીંદવાનું હોય, અથવા તો કોઈ જંતુનાશક કે ફૂગનાશક દવાઓ છાંટવાની હોય, ખાતર નાખવાનું હોય, જે પણ કામ છે એ કરી લેવા જોઈએ. કેમ કે હવે ટૂંક સમયમાં ઓગસ્ટ મહિનામાં પણ ફરીથી વરસાદનો રાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. જોકે ઓગસ્ટ મહિનાની અંદર વરસાદનો રાઉન્ડ કઈ તારીખથી ચાલુ થશે અને કેટલા વિસ્તારોને પ્રભાવિત કરશે, કેટલી માત્રામાં પ્રભાવિત કરશે, આ તમામ માહિતી છે આવતીકાલે 31 જુલાઈના રોજ આપણે માહિતી આપવાના છે. એટલે આવતીકાલનો વિડીયો છે એ આપણે જોવાનો, જેથી કરીને આવતીકાલના વિડીયોની અંદર આપણે ઓગસ્ટ મહિના વિશેના વરસાદના રાઉન્ડની માહિતી આપી શકીએ. પણ ખાસ કરીને આનંદની વાત છે ને આ વિડીયોની અંદર માત્ર એટલું જ કહેવાનું હતું કે આપણે 17 થી 29 જુલાઈના વરસાદના રાઉન્ડની જે આગાહી હતી એ આગાહી મુજબ વરસાદ પડી ગયો છે. જે વિસ્તારોમાં વરસાદ બાકી હતો એ વિસ્તારોમાં પણ છેલ્લા 2 દિવસની અંદર સારો વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જેની અંદર ખાસ કરીને આમ તો ઉત્તર ગુજરાતના અમુક વિસ્તારો અને કચ્છના અમુક વિસ્તારો છે, બન્ની હોય, રાપર તાલુકો છે, આ વિસ્તારોની અંદર વરસાદ પડ્યો એનાથી પણ આપણે ખૂબ આનંદ છે અને ખાસ જરૂર હતી. અને હવે વિસ્તારો જે અમુક બાકી રહી ગયા છે એને પણ વહેલી તકે વરસાદનો લાભ મળે એવી હું આશા અપેક્ષા રાખું છું. અને હવે હમણાં વરાપનો માહોલ છે એની ખાસ આગાહીની રાહ જોઈ રહ્યા હતા એ દરેક ખેડૂત મિત્રોને હું વરાપ વિશેની અત્યારે આગાહીથી માહિતી આપું છું અને આગાહી કરું છું કે હમણાં આપણે 2-3 દિવસ વરાપ છે, તમામ કામો છે વહેલી તકે પતાવી દેવા. બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. મને રજા આપશો. સાથે જ દેશ દુનિયાના તમામ મહત્વના સમાચાર માટે જોતા રહો ગુજરાત તક. નમસ્કાર. Gujarat News has been brought to you by Aaj Tak Sabse Tez.